Because you're honoring the life of someone who was martyred before he could see India independent. I mean, he was an part of the British police, and he refused to obey an order when he was asked to shoot on his own people. Now that in itself is a very great thing. And then he represented the members of the INA, Indian National Army, in the cases. And then finally he was martyred on 5th March 1947, saving about thousands of students in DAV College, Multan. So I'm so happy that at that stage when he passed away, he had a widow, left his widow at the age of 35 with 8 children. And 5 of them joined the Indian Armed Forces, and one of his sons, the Right Honourable Remy Ranger, is now a very distinguished member of the House of Lords. So these are inspirational stories. These are real life on how people have contributed to the development of this country. And today, if India is becoming from the 5th largest going to be the 3rd largest economy in the world, it's those sacrifices that need to be recalled and celebrated. And I would say that I felt it a great honor that the Shahid Nanak Singh Foundation invited me to deliver this year's lecture. Thank you very much. Thank you. Still, it will be great honor to present the India Award is given to those who go the extra mile for Mother India. This is by our illustrious journalist Prem Prakash ji. Jai Bhai still. Ranjit ji, Professor of University. Every year, and you present that book. You're taking it back to do it में आपको बताना कि उनके नाम पर एक रोड होना चाहिए। चंद्रशेखर जी पटियाला के जेल में थे और अपनी जेल जी सर, एक सेकंड बस आपको 2 मिनट की कर लेते हैं, 2 मिनट। माननीय मंत्री जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमो भारत की भी एक Thank you. Honorable Minister, Member of the Indian Cabinet, Shri Hardeep Puri ji, Padma Vibhushan Sardar Talochan Singh ji, former Chairman of the Minority Commission of India, Rana Gurmeet Singh ji Sodhi, Vivek Tanka ji. I have lots of distinguished people. If I forget to mention name, my brother Colonel Govind Singh, his wife, I must mention my wife just in case. Yes, Professor Diljit Singh ji here from Punjab University, Chandigarh. Each year he hosts a Shahid Nanak Singh Memorial Lecture because the message of unity is more important now when so many people want to carve out the kingdom for themselves. Member of the Executive Committee, Mr. Ravinder Sharonji, the Chairman, General Secretary, Puneet Nanda ji, and Mr. Manoj Chauhan ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, we have a General, Lieutenant General in the front row. I brought the army just in case. A serving Lieutenant General. Indian CEO run most of the major blue chip companies in the West by competing with the best in the world.
As independent, we Indians are now enriching the world culturally, economically, and politically. We are recognized as a force for good. I am deeply grateful to the Honorable Minister, Shri Hardeep Puri ji. You all know how busy schedule he has. Without the support of distinguished leaders like Hardeep Puri ji. They empower, encourage, and motivate us to contribute to the strength in strengthening India's unity. Today, I am joined by my elder, bringing artillery guns and bombarding the enemy tanks until the Air Force came into action. The help of artillery made the battle of Longewal decisive, which we so proudly cherish. There are a lot of people who made that possible, and I am so proud. And most versatile diplomat, politician, and minister, Hardeep Singh Puri. I have had the good fortune of having intimately known Hardeep for over 54 long years, virtually since the time I proudly entered the hallowed portals of my alma mater, Hindu College, founded way back in 1899 and acknowledged far and wide as the top-ranked college in India. If I were to... Because there was no employment. I know it's not what he meant, but that's an inference that could be drawn from what he said. But no, I don't think that's true. I think since she was the wife of a true Shaheed, somebody who had the best of the value system, she decided that for the sake, as he says, of the unity of the country, 5 sons serving the Indian Armed Forces, I think that in and of itself deserves a big applause, and I request you to join me in that. Now, 5 joined the Indian Armed Forces, served with distinction. The gentleman on my left, Colonel Saab, fought in the Battle of Longewal. That itself, you could have an entire seminar on the courage and military significance of that in our military history. But then this gentleman went on to the United Kingdom, integrated there, was a very successful businessman, and then his many talents are recognized and he was elevated to the House of Lords. So we applaud that, but we also applaud something more. We applaud the human spirit. We applaud, I think, if you don't mind, because you're not all Punjabis here, we also applaud the Punjabi entrepreneurial spirit. And wherever you go, I mean, I used to come across an expression which one of our late heads of state first mentioned to me. He said, I'd worked with him as a joint secretary in the Ministry of Defense, and then he became President of India. And he once came to, I think, Switzerland, where I was ambassador to the UN in Geneva. And he said, addressing a group of distinguished Indians, he said, you can take an Indian out of India, but you don't take India out of the Indian. So I'm sorry, you're a British national, you're a very important member of the House of Lords. In many ways, you're the voice of an entire influential group of people. But I think your Indianness lies at the core. And what I heard you say, Remiji, it's not because you are sitting here, I would say it to your back also. When you talk about the unity of India, when you talk about the partition, I have, as you would have seen, I don't have a prepared script, but I have some ideas which I want to place before you. As part of this memorial, I would call it an interaction rather than a lecture. Remiji mentioned that the family was a victim of the partition. Actually, an entire generation was a victim of that vibhajan or partition. Was it necessary? I am not in the business of rewriting history. इस धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव की शुरुआत मैं साल 1947 से करूँगा, जब 7 बच्चों के साथ, 7 बच्चे हाथों में और एक पेट में लेकर एक महिला
कोयले के इंजन में बैठकर मुल्तान से हिंदुस्तान के इस हिस्से में पहुंचे। अगर वो महिला इतनी बहादुरी ना दिखाती तो आज हमारे बीच ना तो लॉर्ड रवि रेंजर होते, जो आज हिंदुस्तान की आवाज बनकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जब दहाड़ते हैं तो पूरा विश्व सुनता है, ना हमारे बीच में कर्नल कुलविंदर साहब जैसे सेनापति होते जिन्होंने लोंगेवाल में पाकिस्तान को ना तो चने चबा दिए, और ना वो 5 बहादुर सेनापति होते जो एक मां के बेटे 2 युद्धों में अलग अलग जगह पर तैनात थे, तो कभी चीन से उन्होंने लोहा लिया तो कभी पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। तो ऐसी मां को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शहीद नानक सिंह को, जिन्होंने अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की परवाह ना करते हुए उन बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण समझा जो उस रोज मार्च के 1947 में उस दिन उस स्कूल में फंसे हुए थे, और अपनी जान को न्यौछावर करके उन बच्चों की जान बचाई, जिनमें से कोई इस प्रदेश का किसी प्रदेश का मंत्री बना होगा, कोई मुख्यमंत्री, कोई बड़ा अधिकारी बना होगा। तो शहीद नानक सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अपने कीमती समय से निकालकर हमारे बीच में आए। मुझे याद है जब लॉर्ड साहब के साथ में आपके पास गया साहब, लॉर्ड साहब ने बताया तो 1 मिनट में मंत्री जी तैयार हो गए कि इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी जिस व्यक्ति की हो उसके कार्यक्रम में तो मैं जरूर आऊंगा। तो ऐसी शहीदों के प्रति समर्पण की भावना, और जिस दौर में यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, आज हम यहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आए हैं टू पे ट्रिब्यूट टू शहीद नानक सिंह, जो देश की आज़ादी में शहीद हो गए थे। वो एक बहुत महान लीडर थे, जो सब लीडरों को बोल रहे थे कि अंग्रेज़ों की चाल है डिवाइड एंड रूल, अब डिवाइड एंड रन है, इनकी चाल में मत फंसो। हम सारी सेंचुरियों से इकट्ठे रहे हैं, हमारा हर चीज़ कॉमन है, लैंग्वेज कॉमन है, खाना लैंग्वेज है, हिस्ट्री कॉमन है, हेरिटेज, फोक सब है, लेकिन हम अलग ना हो। आज हम इकट्ठे हैं, यूनाइटेड हैं। अंग्रेज़ भी डर रहे हैं, कल हम राइवल बन जाएंगे, हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, तो हमारी कोई चीज़ भी कॉमन नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब किसी को लालच दे दें कि तुम कुछ भी ले लो धर्म के नाम पे, तो लोग टूट के पड़े। बट उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। आप देख लीजिए कि इस खित्ते में कभी पीस नहीं आया, 4 जंगें हो चुकी हैं, पता नहीं और कितनी होंगी। अब न्यूक्लियर राइवल बन चुके हैं, नेक्स्ट तो न्यूक्लियर कभी यूज़ हो गया तो पता नहीं कोई बचेगा कौन नहीं। इसलिए हमें अपनी हिस्ट्री से लेसन लेने चाहिए ताकि अपना फ्यूचर ठीक कर सके। तो शहीद नानक सिंह का एक ही मैसेज था कि इंडियाज़ डाइवर्सिटी इज़ लाइक द कलर ऑफ ए रेनबो। हम जब इकट्ठे हैं तो हमारे जो रंग हैं सतरंगी पिंक की तरह हैं, अगर हम बिखर गए तो वो सतरंगी पिंक जो है वो बिल्कुल बदशक्ल हो जाएगी। तो लेकिन उस वक़्त अंग्रेज़ों के चाल में आ गए और कंट्री टुकड़े हो गए, तो आज देख लो क्या हाल है। भगवान ने ऐसा किया कि हम सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रहे, जिसमें हर नागरिक एक बराबर है। जब आप किसी नागरिक को धर्म से नीचे कर देते हो, तो जब उसके पास कोई क्वालिफिकेशन ना हो या मेरिट ना हो, तो वह देश भी नीचे आ जाता है। तो इसलिए आज हम सब देश जो है ये हम सबका है, हम सबका साथ, सबका विकास। आज मोदी जी ने भारत को किस जगह पे पहुंचा दिया है, चांद पे पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए, स्पेस प्रोग्राम दुनिया में सबसे अच्छा है, आईटी में हम सबसे अच्छे हैं, फार्मास्यूटिकल में हमारी इकॉनमी नंबर 4 हो गई है, हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है क्योंकि हम इकट्ठे हैं। और उसके बाद देखो हमारी डिफेंस फोर्सेस कितनी मजबूत हैं। ये अगर हम बिखर गए तो हम सबको नुकसान होगा। जब हमारे पे लोगों ने राज किया, क्यों किया कि हम इकट्ठे नहीं थे, हमारे कितने जुल्म हुए, कितनी हमें तकलीफ़ें पानी पड़ी। तो हम आज के बाद प्रण करें कि हम भारत माँ के टुकड़े नहीं करेंगे, और टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं। जब आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, जो मर्जी पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, जो मर्जी लीडर चुनो, पर तुम धर्म से
लोगों को सेकंड क्लास नहीं कर सकते, जैसे कश्मीर में कई करना चाहते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान में सेकंड क्लास हो गया, मैं वहाँ पैदा हुआ, तो उससे देश भी नीचे आ जाता है, क्योंकि धर्म से नीचे करना तो बड़ा, धर्म का काम है लोगों को जोड़ना, तोड़ना नहीं। जो लीडर धर्म को यूज़ करके हमें डिवाइड करते हैं, आप उनसे दूर रहो, कि हम सब अल्लाह के दिए हुए हैं, भगवान के दिए हुए हैं, हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, तो हमें आप प्यार से रहना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। मैं इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बन सका आज। लॉर्ड रेमी रेंजर जो इस वक्त यहाँ लंदन से पहुँचे हुए हैं, उन्होंने अपने पिताजी के नाम का जो ये कार्यक्रम नानक सिंह जी के लिए रखा। मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों का दिल जो है वो दहक गया है। जो बातें सुनने को मिली उसको सुनकर देश के प्रति फिर से एक बार एक मोहब्बत जागती है कि किस तरीके से एक माँ इतना सेक्रीफाइस करके अपने बच्चों को पाल पोस के और फिर जिन हालातों से निकलती है और फिर उन्हें एक बार हिंदुस्तान में सैनिक बना देती है। मैं समझता हूँ ये कहानी जो है बहुत ज़बरदस्त है। ऐसी कहानी के ऊपर तो अगर फिल्म भी बन जाएगी तो मुझे लगता है बहुत चलेगी। सारी बातों को सुन के यही सुनने में जो आनंद, जो समझ आता है वो यही है कि भले रेमी रेंजर जी विदेश चले गए, उनके बड़े भाई विदेश चले गए, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी निकल सकता है, लेकिन हिंदुस्तानी के दिल से हिंदुस्तान नहीं निकल सकता। थैंक यू। उनको आज याद भी किया जाता है, किस तरीके से आप? देखिए, रमी रेंजर जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। लंदन में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे टाइम साथ में स्पेंड किया, और एक बड़े पुण्य आत्मा, उनकी पिताजी बड़ी पुण्य आत्मा थी, शहीद थे देश के लिए अपनी उनने जान निछावर की। तो ऐसे व्यक्ति को जब याद किया जाता है तो एक प्रकार से हम देश को सम्मान देते हैं, उस व्यक्ति को सम्मान देते हैं। तो मैं आज बहुत खुशनसीब हूँ कि आज फिर मैं आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित था। इसके पहले भी बहुत बार जब ये कार्यक्रम हुए हैं मैं पहले भी आ चुका हूँ, और हरदीप जी ने भी अच्छी स्पीच दी और उन्होंने अपने देश के बारे में बात किया, शहीदों के बारे में बात किया। पार्टीशन एक बहुत ही दुखद इवेंट था इस देश का, जब लाखों करोड़ों लोग डिस्प्लेस हुए थे। तो आज पुरानी बातें भी सामने आई, तो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत पुनीत दिन था। सर, एक और जहाँ शहीद को याद किया जा रहा है, वहीं अभी कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर पहलगाम में भी आतंकी हमला, जहाँ पे एक जो टूरिस्ट था उनकी मौत हुई है, उसको आप किस तरीके से? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी में हम सब एक साथ हैं, और ये जो टेररिज्म हो रहा है, ये हर वक्त ये टेररिज्म कोई ना कोई तो सपोर्ट करता है, तभी होता है। और हम चाहेंगे कि इस देश से टेररिज्म ख़त्म हो, कश्मीर में अमन चैन शांति हो, और जो भी एफर्ट्स टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए लगेंगे, हम लोग सब एक साथ मिलके देश के लिए उसमें योगदान देंगे। सर, चुनाव आयोग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी अभी विदेशी दौरे पे हैं, वहाँ पर उन्होंने चुनाव आयोग को, महाराष्ट्र को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद विपक्ष उन पर मतलब बीजेपी हावी हो गई। इसे आप किस तरीके से लेकर? देखिए, ये वक्त चुनाव आयोग के बारे में बात करने का नहीं है, बट हमारे बहुत गिले शिकवे हैं चुनाव आयोग के, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। मातरम, भारत माता की जय। मैं DK त्यागी, इंटरनेशनल सेक्रेटरी NRI एसोसिएशन UK लंदन से हूँ, और लॉर्ड साहब के साथ काफ़ी मेरा अटैचमेंट है। हम वहाँ भी लंदन में साथ रहते हैं। जो भी NRI की प्रॉब्लम होती हैं, स्टूडेंट्स की हों, जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई वहाँ रहते हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लमों को हम थोड़ा पूरा सोल्व करने की उनको कोशिश करते हैं। उनको किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो विदेश की धरती पर। लॉर्ड साहब भी हमारा पूरा साथ देते हैं, लॉर्ड साहब भी बहुत हेल्प करते हैं हमारी। और ये जो शहीद नानक जी का, ये हर साल हम यहाँ करते हैं। लास्ट टाइम भी आपने प्रोग्राम किया था, तो इससे भी एक प्रेरणा मिलती है बच्चों को कि कहते हैं जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, कहावत है ना। तो लॉर्ड साहब जो आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, किताब पढ़ी होगी, तो उसमें देखिए एक ट्रेन के डिब्बे में मदर कैसे अपने बच्चों को बचा के लाती है पार्टीशन के टाइम पर, और वो बच्चे यहाँ कैसे अपने को सजा करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में एक नाम होता है। सबसे बड़ी बात है कर्नल साहब के जो भाई हैं, जिन्होंने 71 की वार लड़ी है, उन्होंने कल वो पहली बार मुझे मिले हैं, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई। वो आज भारत गवर्नमेंट को पेंशन भी देती है, पूरी फैसिलिटी मिलती है सरकार से, इंडिया सरकार से। तो आप ये देखिए, एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है इससे कि
मदर ने, मैं कहता हूँ अगर मदर शिक्षा, एक तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। मैं तो हिंदुस्तान में ये कहूँगा कि एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। अगर एजुकेशन है तो बच्चे बहुत अपने आप आगे जाएंगे। बच्चों को आप ये कोठी महल बंगले बना के ये सब ना दें, उसको एजुकेशन दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, एजुकेशन में ध्यान दें। बच्चों की जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम था। और हमारे जो अंतरंग मित्र हैं लॉर्ड रमी रेंजर जी, उनके फादर साहब जो कि फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने बहुत ही नेक काम किया। उन्होंने सैकड़ों बच्चों को डीएवी स्कूल में मुल्तान में जब वो फंस गए थे पार्टीशन के टाइम, अपनी जान देते हुए उनको बचाया। और उनकी याद में आज सरदार हरदीप सिंह जी पुरी, जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई शहीद नानक चंद जी के बारे में और पूरे परिवार की उन्होंने तारीफ की। किस तरह उनकी मदर ने, लॉर्ड रमी रेंजर जी की मदर ने किस तरह अपने बच्चों की परवरिश की। वो छोटी उम्र, वो 35 साल की उम्र में ही वो वीडो हो गई थी। उसके बाद आज उनके बच्चे देश का भी नाम कर रहे हैं और लॉर्ड रमी रेंजर जी तो पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। त्यागी है और इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। और ये कार्यक्रम 2 कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण मुझे लगा, क्योंकि किसी को सिखाना हो, इंस्पायर्ड करना हो, तो इससे अच्छी संघर्ष की यात्रा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि एक तरफ शहीद नानक सिंह साहब हैं, दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी जी उनके जाने के बाद में किस प्रकार से अपने परिवार का लालन पोषण करके, शिक्षा देकर उनको, अपने 8 बच्चों को किस तरीके से उस गरीबी और परेशानी के आलम से, यानी कि आज़ादी के समय आप देखें जब पार्टीशन हुआ तो क्या मंजर रहा होगा। तकरीबन अंग्रेज़ों की किताब का यदि मैं जिक्र करूँ तो 7 लाख शहीद हुए थे ऑन रिकॉर्ड, और यदि ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो न जाने कितने होंगे। और उसके बावजूद जिनके पास में घर ना हो, आशियाना ना हो, पलायन करना पड़े, उस वीरांगना ने किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया। और इसी के कारण से आज हम देख रहे हैं हमारे लॉर्ड रमी रेंजर साहब इंग्लैंड की संसद में भारत का परचम लहरा रहे हैं। साथ ही उनके और भाईजन जो हैं वो सरहद पर हमारे तिरंगे को ऊंचा करने का कार्य कर रहे हैं। तो सभी के लिए इंस्पिरेशन का ये कार्य है। और ये व्याख्यान दिवस जो आज यहाँ हुआ है वो सभी देशवासियों के लिए और सभी पूरे विश्व के लिए कहूँगा प्रेरणादायक है। हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। शहीद नानक सिंह फाउंडेशन की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हरदीप सिंह पुरी साहब भी आए, आपको भी इनवाइट किया गया। आपकी कैसी फीलिंग है सर? ऐसा है, जो ये प्रोग्राम हुआ है जिसमें हरदीप पुरी जी आए हैं। मेरा नाम परमीत सिंह चड्ढा है, मैं वर्ल्ड सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल चेयरमैन हूँ। बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लोग अपने बुजुर्गों को याद करके उनकी यादगार में प्रोग्राम करते हैं और समाज के सारे बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करते हैं और एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, अच्छे लोगों को मिलने को मिलता है। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बड़े अच्छे लोगों से मिले हैं यहाँ पे। और हरदीप पुरी जी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी बड़ा अच्छा इस सब्जेक्ट के बारे में बोला। सो मैं सबको, इनको ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिनकी याद में प्रोग्राम किया हुआ है उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और इसी तरह ही वो हर साल अपने बुजुर्गों की याद में ऐसे प्रोग्राम करते रहे और लोगों को इकट्ठा करते रहे। थैंक यू। I was a political advisor to the Prime Minister चंद्रशेखर। मैं चंद्रशेखर जी जब 25 जून 1975 में जेल गए थे तो उन्होंने कहा कि कहाँ जेल में जाएंगे, तो कहे कि मैं पटियाला में ही जाऊंगा। पटियाला क्यों उन्होंने चुना? क्योंकि शहीद नानक चंद जी वहीं अपना बलिदान दिए थे। और मैं आज मंत्री जी से डिमांड किया हूँ कि उनके नाम पर, नानक जी के नाम, इतने बड़े शहीद के नाम पर दिल्ली में एक सड़क होनी चाहिए और उनका स्टैच्यू होना चाहिए। जो दोनों मंत्री जी ने इसको एड किया कि मैं इस आगे को बढ़ाऊंगा और उनका स्टैच्यू और उनका लगेगा। धन्यवाद।